Good morning, everyone. Today we are going to study the history third chapter, the first farmer and herder of class 6. The Neolithic Age. A number of important changes took place during this age. The earth became warmer and the ice that covered large part of the land started melting. Plant and animal life became abundant. Humans learned to grow their own food and started sitting down in one place. Important inventions like the wheel and fire pottery brought further changes in the life of the people. The impact of all these changes was dramatic. That this period of human development come to be known as the Neolithic Revolution. Farming. After leading a nomadic existence in search of food for millions of years, around 10,000 to 12,000 years ago, humans began to grow their own food. It is possible that they discovered how to grow crop when they saw plant sprouting from seed. The first crop grown were wheat and barley. Domestication of animal and herding. While fossils also have shown that some animals, especially dogs, had begun to be tamed even during the late Paleolithic age. Other animals come to be domesticated from the Neolithic age. Animals like the cow, ox, bull, donkey, goat, and sheep were tamed and used for ploughing the field, carrying loads and providing milk, food, and skin. As the number of animals each family owned grew herding developed shelter. Once people learned to grow food and domesticate animal, they began to settle down in larger group in permanent dwelling. They mostly did so close to riverbank and other sources of water. They built houses out of mud, bricks, stone, reeds, and branches of the tree. The walls were often coated with plaster. Pit houses were a regular feature of the Neolithic age. The invention of wheel with the axle. The wheel is believed to have been invented at the beginning of the Neolithic period. Early humans would have seen that object could be moved more easily if placed on something cylindrical like a log. Over time, wheels were added on either side of the logs, making it possible to move objects faster and over longer distance. This marked the birth of the wheel with the axle, one of the most important inventions of human history. The wheel cart, the first wheel cart or carriage appeared among, around 3200 BCE in the Eurasian grassland. The invention of the wheeled cart revolutionized the way people traveled. Tools and technology. In the Neolithic age, people began to move tools that helped them in farming and herding. They redesigned the axe by polishing and grinding it edge to a fine sharpness. It was used It was used to clear forest for cultivation. Sickles were also invented and were used to harvest crop. Grinders used to grind grain were made by placing two stones on, on top of each other. Clothes made out of cotton and wool began to replace the rough animal skin people wore in Paleolithic and Mesolithic age. Social life. In the Neolithic period, human beings started living in groups. Over time, the group grew into tribes. A tribe is a group of people
who are related and share common custom and tradition. Most tribes had a recognized leader. Neolithic society consisted of several such tribes. Conflict between these tribes for land and resource was common. Economy and trade. In the beginning, early humans made everything they needed. On their own, they grew their own food, made their own tools and weapons, and wove their own clothes. With time, however, division of labor took place. Farmers grew grain, potters made the pots, and weaver wove the cloth. They exchanged their extra produce with things made by others. This earliest form of trade, where goods were exchanged for other goods and not money, is known as barter. Religion. The Neolithic people worship forces of nature. Many Neolithic group many Neolithic group are also worship Mother Goddess, as can be seen from the large number of figures of Mother Goddess found at Neolithic sites. They also believe in an afterlife. Burial site found at many Neolithic sites indicate that they did were buried with many objects that believe that people believe may be needed in the afterlife. The Chalcolithic age. Toward the end of the Neolithic age, humans discovered the use of metal. The first metal they learned to use was copper. This is why the period following the Neolithic age is known as the Chalcolithic or the Copper Stone Age. They also learned to make bronze and an alloy of copper and tin. The Chalcolithic people practiced agriculture and domesticated animals. They made black and red pottery. Their houses were made of mud brick and thatched roof. Some people lived in stone houses. They knew how to make cloth out of cotton, flax, and silk thread. थर्ड चैप्टर द न्यूलिथिक एज। काफ़ी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस युग में न्यूलिथिक एज के युग में दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जो है पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी और जहाँ पे बर्फ़ जमे हुए थे वो धीरे धीरे वो सभी पार्ट पिघलने लगे थे। अब जो है पृथ्वी पर प्लांट और एनिमल लाइफ जो है अब बहुत आयत में पाए जाने लगे थे। मानव जो है अब धीरे धीरे खेती करना सीखना शुरू कर दिया था और खेती के साथ साथ वो एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के जो परिवर्तन हुए थे उसमें उसने पहिए को बनाया, फिर बर्तन बनाना सीख गया। उसके बाद कई तरह से ये लोग एकत्रित होकर एक जगह पर रहना शुरू किए। इन सभी परिवर्तनों के चलते जो है ये नाटकीय जो रूप से जो परिवर्तन मानव के विकास में दिखाई पड़ते हैं, इसी को न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फार्मिंग। काफ़ी लंबे समय घुमंतू जीवन जीने के बाद खास करके भोजन के खोज में लाखों सालों से लेकर करीब 10,000 से लेकर 12,000 साल पहले मानव जो है वो फसल उगाना सीख गया था। यह ऐसा संभव तब हो पाया जब मानव ने यह देखा कि किस तरीके से बीज से स्प्रोटिंग सीड जो है स्प्रोट होते हैं और उसके बाद से ही उसने जो है खेती करना शुरू किया। जो मानव ने जो पहली बार खेती किया था वो गेहूँ और बार्ले था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड हर्डिंग। खुदाई में मिले जो अवशेष ये साबित करते हैं कि मानव जो है शुरुआत से ही अपने साथ जानवरों को डोमेस्टिकेट करके रखता था। पैलियोलिथिक एज में जो सबसे पहला मानव का जो जानवर को जिसने डोमेस्टिकेट किया था वो कुत्ता था। कुछ जानवर और भी डोमेस्टिकेट किए गए थे, वैसे जानवर जैसे कि गाय, बैल, भेड़, गधा, बकरी, इन सभी को अभी जो है उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था अपने उपयोग के लिए। कुछ को खेत जोतने के लिए, कुछ को सामान ढोने के लिए, कुछ को तो दूध, भोजन और चमड़ा देने के लिए। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इससे इनके फैमिली में अधिकांश परिवारों में जो है पशुपालन बढ़ते गया। शेल्टर। एक बार जब मानव ने
फसल उगाना सीख लिया, साथ ही साथ पशुपालन भी सीख लिया था, तब उसकी ज़िंदगी जो है वो क्या हो गई, वो स्थिर हो गई। वो एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और वो अपना एक परमानेंट घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो घर मिलते थे, अधिकतर घर जो है नदी के किनारे या फिर किसी पानी के संसाधन के नज़दीक मिलते थे। खास करके ये जो घर बने होते थे वो ईंटों, पत्थरों और कुछ लकड़ियों की सहायता से या पेड़ों के ब्रांचेस की सहायता से बनते थे। और इसके जो दीवार होते थे उसको जो है एक मड के तरह प्लास्टर कोटिंग किया जाता था। इस तरह के हाउसेस को पिट ड्वेलिंग हाउस न्योलिथिक एज में कहा जाता था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील विथ एन एक्सल। माना जाता है कि पहिए का आविष्कार जो है इसी समय हुआ था और ये न्योलिथिक पीरियड के द्वारा ही हुआ था। शुरुआत में मानव जो है जब कभी भी उसने ये देखा था कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना सबसे आसान हुआ कब, जब एक गोलाकार सिलेंडर नुमा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में वस्तुओं को रखकर लुढ़का कर ले जाने आसान होता है। समय बीतने के साथ साथ पहिए का आविष्कार, उस लोग के किनारे पहिए को लगाया गया, फिर पहिए के साथ साथ उसको आगे की ओर विकसित किया गया। इसी के द्वारा ही बर्थ होता है किसका, व्हील विथ एक्सल का। और ये सबसे महत्वपूर्ण विकास था इतिहास में। उसके बाद पहली बार जो लकड़ी का गाड़ी कैरेज, जो व्हील कार्ट जो बोलते पहले पे पहिए के जो गाड़ी होती है लकड़ी की, वो 3200 BCE में यूरेशियन ग्रासलैंड में मिलता है। इसका इन्वेंशन व्हील कार्ट रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल ट्रेवल्ड, और इसके सहारे जो है मानव जो पहले यात्रा किया करता था उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया जब लकड़ी के गाड़ी का आविष्कार हो गया। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। न्योलिथिक एज में मानव जो है कई तरह के टूल्स का निर्माण कर चुका था, चाहे वो उसका खेती से लेकर या फिर शिकार करने तक ही क्यों ना हो, वो अपने हर एक औजारों को वो आविष्कार किया था। वो एक्स को भी बनाया, फिर उसका धार उसको पॉलिशिंग करना, उससे ग्राइंडिंग करना, ये सारे काम जो है वो टूल्स के सहारे करता था। उसके बाद जो है वो पेड़ों को या जंगलों को साफ करने के लिए अलग से सिकल, फसल काटने के लिए हंसुआ वगैरह सारी चीज़ों को वो इसी समय में उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसके साथ ही साथ कपड़े बनाने का भी औजार जो है उसने बनाना शुरू कर दिया था और उसके सहारे वो कपड़े को बनाना शुरू किया था। सोशल लाइफ। न्योलिथिक पीरियड में मानव जो है शुरुआत से ही समूह में रहता था। काफ़ी समय बीतने के बाद ये समूह जो है बाद में क्या बनने, समुदाय के रूप में या फिर आदिवासी ट्राइब्स के नाम से भी जाने लगे हैं। आदिवासी ट्राइब्स उन मानव समूह को कहते हैं जिनका एक समान रीति रिवाज और प्रथाएं होती है। अधिकतर ट्राइब्स के मुखिया होते थे। न्योलिथिक सोसाइटी में बहुत से ट्राइब्स खोजे गए और इन ट्राइब्स के बीच में जो है झगड़े, खास करके ज़मीन और संसाधनों को लेकर, ये सामान्य होती थी। इकोनॉमी एंड ट्रेड। उस समय जब शुरुआती दौर में जब मानव जो सब कुछ सीख चुका था, खेती करना, औजार बनाना, ये सारी चीज़ों को, तब जो है उन्होंने अपने फसल को बढ़ाने के साथ साथ उन सारे फसलों को बेचते थे जो सरप्लस होते थे। बेचा क्या करते थे, ये उसको आदान प्रदान करते थे और इसमें किसी तरीके से मुद्रा का कोई रूप नहीं होता था। ये एक्सचेंज का मेथड लगाते थे, जो कि उस समय इसको बार्टर सिस्टम कहते थे कि वस्तु के बदले एक वस्तु लो, दूसरे वस्तु उसके मूल्य के बराबर आदान प्रदान करने की क्रिया को हम लोग बार्टर कहते हैं। रिलीजन। द न्योलिथिक पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे प्रकृति के शक्ति को, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न शक्तियों को वो वर्शिप करते थे। कई न्योलिथिक साइट पे कई मूर्तियाँ मिली हैं जो कि मदर गॉडेस की मूर्तियाँ कही जाती हैं। ऐसा विश्वास माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है उसकी पूजा करते थे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखते थे, इसलिए कई बरियल साइट्स पे वहाँ पे बॉडीज़ के साथ में कई तरह के ऑब्जेक्ट भी दफनाए हुए मिले हैं जो कि आफ्टर लाइफ के संकेत देते हैं। द कैलकोलिथिक एज। जब न्योलिथिक एज का समय समाप्त हो रहा था, ह्यूमन जो है वो कई और धातुओं की खोज कर चुका था। पहला जो धातु उसने खोजा था, जिससे सीखा था, वो क्या था, कॉपर का उपयोग
इसके सहारे ही उसने जो है आने वाले सालों में जो है उसके मिक्स करके अलग अलग उत्पाद बनाना शुरू किया, जैसे कि ब्रॉन्ज के साथ में कॉपर को मिलाकर एलॉय बनाया, कॉपर और टिन को मिलाकर एलॉय बनाया ब्रॉन्ज। वहीं पे कैलकोलिथिक पीरियड में जो है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल को जो है डोमेस्टिक करना तो शुरू हुआ ही था, लेकिन इन सभी जगहों पे अब धातुओं का उपयोग होने लगा था और धातु से ही बने सारे वस्तुओं को उपयोग में लाना शुरू कर दिए थे।